Acha, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start chapter number 4 of your book, that is Corporate Governance by Dr. S.A. Bhatt, 4th edition. The name of the chapter, as you can see, is the Board of Directors. This chapter is all about the guiding role or governing role of Board of Directors and how they govern an organization. What is their role? What is the characteristics they have? What is the benefits we have from the board, what sort of decision they will take within an organization, and how they will direct the related management in order to achieve the goals of an organization. So starting from the very first topic, that is board as principal instrument of governance. We can easily understand that whatever the idea we can make in our mind regarding the word principle, we can apply the same sort of idea on the role of a board. Principles mean the rules and regulation that we have to follow. Board as principle means whatever the board will decide, हमने उसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन में लेके चलना है. अब जो भी बोर्ड डिसीजन मेकिंग करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करेगा, जो पॉलिसीज बनाएगा, वो तमाम के तमाम जो डाउनवर्ड हमारा फ्लो होता है उसकी उसी तरह से अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स से लेकर मिडिल लेवल और फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स लेकर लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स तक वही रोल ट्रांसफर होता रहेगा. यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे दिमाग में एक अपने आप आइडिया आ जाएगा कि these rules and regulation was formulated by the board of directors. Fine. Now we have the very first thing, that is company is progressive if board performs duty in an efficient way. It is very much important that the personnel that we have selected within the board should have the skills, should have the qualifications, should have the tactics to deal in the better way, in the efficient way or in the effective way for the prosperity of an organization. हमने क्या करना है as a board of director? हमने ये बात समझ लेनी है कि we are working as an employee, we are working as an agent, and who is the principal? The shareholders. Shareholders provided you the money, shareholders elected you. आप जो मर्जी हो जाए, चाहे आप CEO क्यों ना हो जाए, चाहे आप कंपनी के डायरेक्टर प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो जाए, यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय. आपने अपनी सैलरी लेनी है और सैलरी आपको दी किस लिए जा रही है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पेरस बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए सोचना है. अगर आप ऐसा नहीं करते, इन द नियर फ्यूचर यू विल फाइंड योरसेल्फ एज एन पर्सन हु विल बी किक आउट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि यू वर सपोज टू परफॉर्म एन एक्टिविटी दैट शुड बी beneficial for an organization. You were supposed to perform an activity that should create profits for an organization. लेकिन जब आपने अपनी ड्यूटी सही तरह परफॉर्म नहीं की, आपने अपना रोल इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया, आपके अंदर वो स्किल्स, वो टेक्टिक्स, वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाता है, तब आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको हटा दिया जाएगा. अब ये जो तमाम चीज़ें हैं अगर आप करते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आप क्रिएट करते हैं जो इफेक्टिव हों, जो एफिशिएंट हों, आपके अंदर स्किल्स हों, के अंदर आप एक्सपीरियंस पर्सन हों, आपको तमाम क्या कहना चाहिए, हुनर आते हैं जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं और शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं, गोल्स अच्छे सेट कर सकते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन फिर प्रोग्रेसिव वे में मूव कर रही होती है. और वो तब ही करेगी जब बोर्ड उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करेगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल that only the managers will make an organization a profitable one. क्यों? क्योंकि managers ने जो rules and regulation उन्हें दिए गए हैं उसके अंदर रह के काम करना है, और बोर्ड क्या है? जिन्होंने वो rules and regulation बनाने हैं. हम मैनेजर के ऊपर किसी तरीके से भी ये डिसाइड नहीं कर सकते this person is basically the reason for the failure of an organization. Why? Because the manager was just following your rules and regulation. Whatever the directions you gave to that मैनेजर ने बस उन्हें फॉलो किया. आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, आपकी कही हुई बात को वो आगे लेके चला. ही वॉज नॉट द पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू डिसाइड समथिंग. वो खुद डिसाइड कुछ नहीं कर सकता था, उसने आपकी बात को कैरी फॉरवर्ड किया और लेके चला आगे. अगर फेलियर आया तो बोर्ड कैन नॉट, बोर्ड सम सॉर्ट ऑफ somehow the board can declare that person as a reason for the failure, but at the end we will have to check that what was the rules and regulation
Did the manager follow that rules and regulation? If he followed that rule and regulation, and even that there was an unsuccessful result or not a profitable outcome, so it means the rules and regulation, the manager followed that rules, but the rules and regulation were not effective, and that rules and regulation was created by board. यानी हम at the end हम board को blame करेंगे अगर हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि जो मैनेजर था उसने अपनी एक्टिविटी को सही परफॉर्म किया, उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के काम किया, लेकिन उसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम सिर्फ उसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वी हैव टू ब्लेम टू द बोर्ड. Company is in-progressive if board perform duty is an inefficient way. In-progressive और non-progressive you can use both the words. यानी अगर बोर्ड को हम all in all consider कर रहे हैं कि बोर्ड, अगर कंपनी अच्छी चल रही है इसका मतलब है बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, अगर कंपनी अच्छी नहीं चल रही इसका मतलब है बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा. मतलब बोर्ड के ऊपर हमने पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना है कि इस बोर्ड ने हमें बताना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. अगर तो गलत होती है तो हम चेक करेंगे कि क्या बोर्ड ने सही डिसीजन लिए थे, अगर तो नहीं लिए थे तो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, द बोर्ड कैन नॉट ब्लेम अ मैनेजर even in a case if the manager followed that rules and regulation. अगर मैनेजर ने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, जो जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड ने उसे दिए उन्हें फॉलो की है, उसके बाद हम किसी सूरत पे भी मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें बोर्ड को ही ब्लेम करना होगा. ठीक हो गया. इसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ बोर्ड एफिशिएंट रोल्स डिमांड. यानी अगर हम कहते हैं कि वी नीड एन एफिशिएंट board of directors, we need an efficient governance, we need an efficient way to run the organization. उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होते हैं. Provider entrepreneurial leadership to the company. Board is basically the provider of entrepreneurial leadership. What is the meaning of entrepreneurial leadership? Leadership means you have to lead the organization. You have to, you will be the first person to run on the road, and later on the participants will have to follow you. लीडर क्या है कि वो खुद सबसे पहले आगे करता है, लीड करता है, और पार्टिसिपेंट सबऑर्डिनेट्स उसे फॉलो करते हैं. Entrepreneurial leadership क्या है? Entrepreneurial leadership is basically a concept in which you have to create something new in your mind. आपने की हुई चीज़ को बार बार नहीं लेके चलना, आपने कोई पहले वाली एक्टिविटी में कोई नई बात ढूंढ लेनी है. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे जिसमें पहले की हुई चीज़ के अंदर कोई बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे. हम कोई ऐसा काम करेंगे कि हमें मालूम हो जाए कि ये जो चीज़ चल रही थी पास्ट में, इसके अंदर अब कोई बेहतरी आ गई है, हम उस बेहतरी को साथ लेके चलेंगे, हम उस बेहतरी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो नई चीज़ है ये हमारी लीडरशिप एक्टिविटीज़ को या लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकती है. इफ़ दैट थिंग कैन इन्हेंस योर एक्टिविटी, कैन इम्प्रूव योर एक्टिविटी, तो इस चीज़ को जब आप विद इन द रनिंग कंडीशन में कोई न्यू इन्वॉल्वमेंट एंड न्यू प्रैक्टिस लेके आते हैं और उसके साथ आप लीड करते हैं, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप. दो इन पाकिस्तान द सिचुएशन इजंट गुड, दो इन पाकिस्तान द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप इज लैकिंग. लेकिन हमें अभी भी अगर हम चाहें तो हम ऐसे बोर्ड, हमें कुछ एग्जांपल शायद मिल सकती हैं कुछ कंपनीज की जिनमें एक एक बंदे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और उस बंदे ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके रख दिया. Because that person knew कि I am responsible, I have been given the responsibility to perform something for the organization. और उस बंदे ने जब परफॉर्म किया पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई. उसी बंदे ने एक नई चीज़, नया फिनोमेना, नए थॉट्स, नए थिंकिंग पैटर्न को साथ लेके आया और वो उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया? एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप. शुड बी स्ट्रेटेजिक. It should not be like that you started your activity without having the idea about the way. आपको रास्ते के बगैर आप चलने लगे, ऐसा नहीं होगा. It is not possible that you started your journey without having the idea of the destination. कभी भी आप सफ़र का आगाज़ नहीं करते जब तक आपको अपनी मंजिल का ना पता हो. You will have the idea कि मैंने कैसे करना है और कहाँ तक पहुँचना है और ये मेरा मकसद है. When you will create that idea that I am going to follow this way and this way will lead me to that destination, यानी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं.
अगर आप छोटी सी एग्जांपल लें कि जी हमने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है, हमारे दिमाग में रोड मैप बन जाता है कि मैं रास्ते में फलां रास्ता लूँगा, ये रोड लूँगा, इस रोड से मैं लेफ्ट हो जाऊँगा, इस रोड से मैं राइट हो जाऊँगा। तो ऑर्गेनाइजेशन और द board of directors are considering the same phenomena. They are making the strategy that we have to, for example, we have to create an output of 1 lakh यूनिट्स। हमने 1 लाख यूनिट क्रिएट करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। उसके लिए उन्हें तमाम के तमाम आइडिया होगा कि हमारे पास फंड्स कितने हैं, हमने किस किस मैनेजर को साथ लेके चलना है, हमने एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, हमने उसमें इनोवेशन क्या लेके आनी है, क्या हमारी प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, हमने किन किन मार्केट में जाके उसे चैनलाइज करना है, हमने कौन कौन सी जगहों पे उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, फिर प्रोडक्शन के वक्त हमारे सप्लायर्स कौन होंगे, हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, प्रिक्योरमेंट एक्टिविटी कैसी होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, फिर हमें साथ साथ हमें क्या क्या और रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अच्छा, जब हम प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम किस तरह चैनलाइज करेंगे, हमारी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ किस जगह पे प्लेसमेंट होगी, वहाँ से हमारे कस्टमर्स आएंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजी। आपने हर चीज़ को करने के लिए एक दिमाग में रोड मैप, यानी आप जो आइडिया क्रिएट कर रहे हैं ना, वो प्लानिंग, वो एक किस्म की एज अ रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क कर रही है आपके लिए। यूज रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट वे। You should have the idea कि sir I have only $1 million available and that $1 million will be used to create units of 50,000 यूनिट्स। आपने कोई चीज़ बनानी है, आपके पास एक आइडिया हो जाता है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, उसी रिसोर्सेज में रह के आपने फिर 50,000 चीज़ों को देखना होता है कि मेरे पास वर्कर्स आएंगे, मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, किस किस कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ से मैं वो चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, ये दीज आर बेसिकली द रिसोर्सेज यू हैव। यूज रिसोर्सेज इन एफिशिएंट वे। रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। Now that is a very much important thing for a board to create an efficient result. बोर्ड को efficient result create करने के लिए performance review या performance evaluation system को strong करना होता है. It is not like an activity that you started your journey from the day one and after the period of 365 days and or in the next annual general meeting you are declaring sorry sir we are unable to create the positive result. No, what you did during that journey, you should create an idea, you should create a strategy, you should create a plan जिसमें आप थोड़े थोड़े पीरियड्स के बाद उन्हें चेक करते रहें कि भाई आपने क्या अचीव कर लिया है। अच्छा, आपने क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए सेट किए हुए थे, उसे आपने अचीव करने के लिए किन 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 पैटर्न्स के ऊपर आप चले हैं। ये तमाम चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने बस स्टार्ट किया डे 1 को और अब उसका रिजल्ट 365 डेज के बाद आपको मालूम होगा। नो, आपने डेली बेसिस पे आप इवेल्यूशन करें, वीकली बेसिस पे कर लें, मंथली बेसिस पे कर लें, क्वार्टरली बेसिस पे कर लें, सेमी एनुअली कर लें। आपको एक इवेल्यूशन का प्रोसेस क्रिएट करना होता है। और क्योंकि हम बोर्ड की बात करें कि बोर्ड विल हैव टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ यू मे से evaluation for the managers because managers are the subordinates of a board. मैनेजर ने बोर्ड को देखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सारी एक्टिविटी करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी तमाम चीज़ों को देखेंगे, उन्हें इवेल्युएट करेंगे, उन्हें चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं है, क्या ये जो परफॉर्मेंस इसने की है क्या ये उस गोल या उस मेन ऑब्जेक्टिव जिस तक हम पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए काबिल है या नहीं है। तो रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेट कंपनीज वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड। Now that is a very much important thing कि आपने efficient doesn't mean profitable. That is a very much important thing you should keep in your mind. Profitability is something different. Efficiency is something different. Efficient organization tries to create more output within the limited inputs. आपके आउटपुट ज़्यादा होने चाहिए विद इन द लिमिटेड इनपुट्स, ये आपकी एफिशिएंसी है।
अब उसमें आप क्या करेंगे, अपने वैल्यूज भी सेट करेंगे और स्टैंडर्ड्स भी सेट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड सम सॉर्ट ऑफ एन एथिकल थिंग, इसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू या एथिकल वैल्यूज या एथिकल जो है ना इन्वॉल्वमेंट, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। I gave you an example in chapter number 1 that you can create a maximum profit when you will establish a fertilizer factory near, let's suppose, households. आप ऐसी जगह पे फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोल लें जहाँ पे हाउस होल्ड ज़्यादा है, वहाँ के लोगों ने अपनी फसलें उगानी है, तो वहाँ से वो आपसे ही फर्टिलाइजर खरीद लेंगे। उन्हें आपको फॉरेन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही बन जाएंगे, आप ही चीज़ सेल कर रहे होंगे, और आपका क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम यू शुड कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट वट एवर द harmful gases that will be released from your factory will not be good for the household. तमाम के तमाम हाउस होल्ड के लिए आपकी वो चीज़ें बेहतर नहीं हैं। आपके जो वो गैसेस हैं जब वो हवा में जाएंगी तो वो आपके लिए लोगों के लिए मसला क्रिएट होगा। यानी आपकी एथिकल स्टैंडर्ड्स या एथिकल वैल्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर इस सूरत हाल में आपको ये बात फेस करनी पड़ जाए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ देखनी है, आपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। जब हमने 2011 और आई थिंक 2012 में ये देखा कि लेस चिप्स के खिलाफ ये कहा गया कि दे द चिप्स आरंट हलाल, तो तब उन्होंने क्या किया, उन्हें अपनी वैल्यूज़ को कंसीडर करना था। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश की। अभी पिछले दिनों कुछ अरसा गुजरा जिसमें जी जो हमारा चिकन की जो इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने कहा कि जी ये कैंसर का बायस बन रही हैं। तो डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अपना डोर ओपन कर दिया, जी आए, यू कैन विजिट अस। हम जिस तरह तरीके से बनाते हैं इसमें हाइजीन का बड़ा बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, हाइजेनिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब ये दीज आर बेसिकली द एक्टिविटीज़ that you must have to adopt as a supreme authority within an organization. आपने सारी चीज़ों को कंसीडर करना है, सारी चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंट बोर्ड। क्या वो किस किस्म के बोर्ड्स को हम कहते हैं कि ये इनएफिशिएंट है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, या ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबल नहीं है, या ये ऑर्गेनाइजेशन के को बेहतर नहीं चला सकते। ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये बोर्ड इनएफिशिएंट है या इनइफेक्टिव है। तो उसमें रबर स्टैम्प बोर्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रबर स्टैम्प बोर्ड? रबर स्टैम्प बोर्ड वो बोर्ड्स होते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई चीज़ जहन में नहीं रखी जाती, जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग में कोई भी मतलब उस पर बहस नहीं होती, उसमें चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता, उसमें स्ट्रेटजी को सही तरह इंडोर्स नहीं किया जाता, स्ट्रेटजी सही तरह बनाई नहीं जाती, बस वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे दो रूल समझ लें आप, एक होता है डेमोक्रेटिक बोर्ड और एक होता है सेंट्रलाइज्ड बोर्ड। डेमोक्रेटिक बोर्ड होता है जिसमें तमाम के तमाम मेंबर्स को ये अथॉरिटी दी जाती है कि यू मे कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने कंट्रीब्यूशन अपनी शो करनी है। जबकि जो सेंट्रलाइज बोर्ड होता है उसमें सिर्फ एक बंदा सुप्रीम अथॉरिटी कंसीडर कर लिया जाता है, जिसमें चेयरमैन जिसे हम कह लें, और वो जो बात कह दे रेस्ट ऑफ द पार्टी विल हैव टू फॉलो इट। और इस किस्म के बोर्ड हमेशा इनइफेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर जानबूझ के एक चीज़ क्या कहना चाहिए, इंडोर्स कर दी जाती है दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट। उनसे पूछे बगैर उन्हें एक ऐसी चीज़ दे दी जाती है, गोल उनके लिए सेट किया जाता है जो कि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि सर वी आर inefficient, or we don't have that skills, or we are incapable, non-capable to perform this activity, unable, sorry, we are not in a situation to perform this activity। और वो इस किस्म की डिसीजन मेकिंग में एक रबर स्टैम्प को यूज़ किया जाता है, जिसे एक सफ़े पे स्टैम्प लगा के पहुंचा दिया जाता है कि आपके लिए ये हुक्मनामा आया है। एंड दैट सॉर्ट ऑफ ऑर्डरिंग सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऑर्डरिंग सिस्टम जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाता।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करने लग जाता है जिसमें कोई भी अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करता, कोई भी अपने स्किल्स को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो वही एक्टिविटी करता है जो कि उसे कह दी जाती है, चाहे अगर किसी के पास ज़्यादा स्किल्स हैं और उसके लिए कोई एक मामूली सा काम ऑर्डर की फॉर्म में आ जाता है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, तो वो इन्जॉय नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मेरी जो स्किल्स हैं जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्किल्स इस ऑर्गेनाइजेशन में इन स्किल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन क्योंकि मेरे लिए जो गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया गया वो बहुत छोटा सा है और मैं अपने स्किल्स के मुताबिक इस गोल और ऑब्जेक्टिव को अगर पूरा कर भी लूँ तो ये तो मेरा गोल बहुत ही आसान था। आई वॉज इन अ सिचुएशन और आई हैड दैट स्किल दैट कुड क्रिएट समथिंग मोर फ्रॉम मी। मुझसे कुछ ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो गोल मेरे लिए सेट किया वो तो बहुत छोटा सा गोल है। दो आई हैव टू फुलफिल दैट, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई एक्टिविटी। मैं अपनी ही एक्टिविटी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ कि मैंने क्या, मुझे ये ऑब्जेक्टिव दिया गया था, ये तो बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव था, ये तो बड़ी आसान सा काम था विच आई हैव परफॉर्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोल्ड good old boys board. A good old boys, as you can get an idea from the name of the board, good old boys board ऐसे बोर्ड्स होते हैं कि जिसमें बूढ़े लोगों को, आर्मी के रिटायर्ड लोगों को या एजड लोगों को कंसीडर किया जाता है कि that they have the skills, no, sorry, they have the experience, that's why they will take the decision in a better way. ऐसे बोर्ड्स भी इनफेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव द आइडिया दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर चेंज इज परमानेंट। चेंज परमानेंट रहेगा, एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी और वो उस चीज़ का क्या नाम है? चेंज। चेंज की वजह से क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर ऑब्जर्विंग, वी हैव द आइडिया कि मार्केट के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, मार्केट के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट के अंदर नई से नए स्किल्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरल रोल्स इंक्रीज हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन नई से नई प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, नए से नए टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं टू ग्रैब द कस्टमर, टू इंक्रीज द वर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस सारी सूरत हाल को वो बंदा कैसे टैकल कर सकता है जिसका एक्सपीरियंस आज से 30 साल पुराना हो, उसे वही आइडिया हो कि 30 साल पहले क्या रूल्स थे, किस किस क्या कंडीशन थी, वो जो भी उसने फेस किए हालात को आज वो हालात नहीं होंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें तब्दील हुई थी। और वो जो आपको डिसीजन मेकिंग या आपको वो आइडिया देगा, वो वाला आइडिया देगा जो आज से 30 साल पहले एप्लीकेबल था। तो इस सूरत हाल में गुड ओल्ड बॉयज बोर्ड इज कंसीडर्ड एज एन इनइफेक्टिव बोर्ड। ये इनइफेक्टिव होता है, इसकी वर्थ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि तमाम बूढ़े लोग बैठ के वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब न्यू रिक्रूटमेंट्स कर रहे होते हैं, वो बच्चे जो नए आते हैं, नए स्किल्स नई इरा के अंदर इंक्लूड होते हैं, इंडल्ज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के अंदर, वो देखते हैं कि यार ये जो हमें बातें कह रही हैं ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करें, या ये अप्लाई तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हमारी आज की रिक्वायरमेंट्स, हमारी आज की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती। फिर है पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड is basically a board that is present on the paper, but the rest of the things or the practical things are completely different from the thing that is written on the paper. पेपर बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है कि जिसमें नाम किसी का होता है, काम कोई कर रहा होता है। यानी आपकी एक्टिविटी में ये लिखा गया है कि यू हैव टू मेक द, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक द एनुअल रिपोर्ट, लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी है जिसने एनुअल रिपोर्ट बनानी है, वो यही काम अपने सबऑर्डिनेट से कह रहा होता है कि यार तुम करो ये काम। यानी उस जो काम किसी का होता है, कर कोई रहा होता है, इसे कहते हैं पेपर बोर्ड। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम तो लिखा जा रहा होता है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो डायरेक्टर आपके शेयर होल्डर्स का रियल एजेंट है, वो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को ओवरव्यू कर रहा है, एक हर जिहाद से देख रहा है कि किसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के
तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हों, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, दे हैव द आइडिया कि जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ले आएंगे तो वो हमारी हर एक्टिविटी पे हमसे पूछ कर शुरू कर देगा। उसकी जब दिल करेगा वो हमसे क्वेश्चन मार्क हमारे हमारे हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा कि नहीं, यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्टिविटी। और फिर ये हमारे लिए बड़ा क्या कहना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है, या हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्टिविटी दैट देयर इज़ अ पर्सन that is present at upper level, or you may say that he is present to criticize you, यानी वो हमें हर बात पे क्रिटिसाइज करेगा। इस तमाम एक्टिविटी से अब बचने का तरीका क्या है कि पेपर पे तो हमने लाजमी शो करना है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम, क्योंकि एसईसी पे आपसे पूछे कि जी भाई आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, तो इसलिए बेहतर है ऐसे बंदे को ले आओ जो कि कंपनी में कभी आए ही ना, मेरा कोई जानने वाला या किसी का कोई जानने वाला, दूर का जानने वाला, जैसा मेरे साथ कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है ना कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं है। यानी ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं एसईसीपी की तरफ से कि कोई ब्लड रिलेशन में ना हो और कोई आपसे डायरेक्ट रिलेशनशिप में ना हो ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे बंदे को आके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दें ताकि वो कल को आपको क्रिटिसाइज ही ना कर सके, उसे समझ ही ना आए ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। अब वो बोर्ड में तो उसका नाम है लेकिन वो कहाँ पे है, सिर्फ पेपर पे है। Practically, that person is not involved in the activities of the board. So that sort of board is named as a पेपर बोर्ड, और पेपर बोर्ड भी हम कह सकते हैं कि ये इनइफेक्टिव होता है, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है, या ये एप्लीकेबल बोर्ड नहीं है इन ऑर्डर टू गेट द प्रोग्रेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास चौथी एग्जांपल किसकी आ रही है, ट्रॉफी बोर्ड। Trophy board is basically the board that you have assigned, that you have created on the basis of the achievement of a certain person. The board that you have created on the basis of the achievement of certain persons. यानी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने थे, आपने कहा कि कौन कौन किस किस एक्टिविटी में किसने क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं, उन अचीवमेंट की बेसिस पे आपने उस बंदे को बोर्ड का मेंबर बना दिया। इसकी एग्जांपल आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल में ये है कि आपके कोई एक अच्छा क्रिकेटर है, उसने अपने रिकॉर्ड्स बहुत बनाए, उसे क्रिकेट की बहुत समझ है, हमने उसे क्रिकेट क्योंकि उसकी अचीवमेंट बहुत हैं, क्योंकि उसकी ट्रॉफीज बहुत हैं, हमने उस बंदे को बोर्ड का मेंबर बना दिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि एज अ प्लेयर चीज़ों को देखना और बात है, एज अ मैनेजर चीज़ों को मैनेज करना और बात है, तो दो चीज़ें डिफरेंट है। उस बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक आइडिया नहीं है, उसे नहीं पता बोर्ड का इन्वायरमेंट क्या होता है, बोर्ड में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, बोर्ड में कौन कौन से सिनेरियोज को देखा जाता है, बोर्ड में किन किन वैल्यूज़ को किन किन बातों को वैल्यू देनी होती है। ये तमाम फैक्टर्स हमने क्या कर दिए, हमने इग्नोर कर दिए, हमने सिर्फ और सिर्फ उसे बेसिस पे मेंबर बनाया कि उसकी अचीवमेंट्स बहुत हैं। अब ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली द ट्रॉफी बोर्ड। ट्रॉफी बोर्ड भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकते। हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रॉफी बेसिस पे चल रही है वो भी एक इनइफेक्टिव बोर्ड है। अच्छा, इसके बाद हमारी अगली डिस्कशन है ऑन द टॉपिक दैट इज पावर्स ऑफ बोर्ड। अब पावर्स ऑफ बोर्ड क्या है, यानी क्या क्या इख्तियारात बोर्ड के पास हैं, कौन कौन सी चीज़ों में हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द अथॉरिटी दैट द शेयर होल्डर्स हैव गिवन टू द बोर्ड। बोर्ड के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं। पहली अथॉरिटी है कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आइन, आइन मीन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल द वेज, all the steps, all the policies, all the patterns, all the things that you have to follow, you have to consider to perform your activity. अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम वो फैक्टर्स आ जाते हैं कि जिसके ऊपर हम अपने कंपनी को रन करेंगे। कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, बोर्ड के पास है। बोर्ड विल हैव टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। बोर्ड क्योंकि हमने उसे सुप्रीम प्लेस पे रखा हुआ है, वो चीज़ों को मतलब वो देख रहा है
कि कैसे तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वो आइन उसी हिसाब से बनाएगा कि अगर ये चीज़ें इस हिसाब से हो रही हैं तो इस हिसाब से चलनी चाहिए, इस हिसाब से इन्हें फॉलो किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरे पावर है बोर्ड के पास, द लॉ ऑफ पाकिस्तान। यानी इस बोर्ड ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात किया जाए कि इसने ये भी ध्यान में रखना है कि कानून इसे किस किस चीज़ का इख्तियार दे रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तान के जो हम पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं कंपनीज को ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। वो जो डायरेक्शंस दी हैं वो क्या दी हैं, एक्चुअली वो उन्हें पावर्स दी हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रांगली उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें, उन चीज़ों को ले के चल सकें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिए गए हैं वो एज अ पावर यूज़ किया जा सकता है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि कोई बंदा अगर कोई मैनेजर बोर्ड को क्वेश्चन करने लग जाए कि सर ये आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो बोर्ड क्या करेगा, वो तमाम के तमाम जो क्या कहते हैं उसे तमाम के तमाम लॉज पाकिस्तान की तरफ से या SECP की तरफ से बनाए गए हैं उसको आंसर कर सकते हैं कि आई हैव दैट अथॉरिटी टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ठीक हो गया। उसके बाद है रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर। क्योंकि जो भी पावर्स हैं बोर्ड की वो शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं और रेजोल्यूशन के थ्रू वो पास की जाती है। हम एजेंडा लेके आते हैं कि ये एजेंडा इस मीटिंग का, इसमें हम बोर्ड को ये पावर देना चाह रहे हैं। तो जब जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो रेजोल्यूशंस होती हैं शेयर होल्डर पास कर लेते हैं, वो तमाम की तमाम रेजोल्यूशन बोर्ड की पावर्स बन जाती हैं। Powers according to industry's practice, another sort of power is basically the powers मोस्टली परफॉर्म विद इन एन इंडस्ट्री। अगर हम PIA की बात करें, वो एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो बाकी एयरलाइन कंपनी है सॉरी उसी इंडस्ट्री में एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जिन जिन कंपनीज की जो जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो जो डिसीजन मेकिंग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी एयरलाइंस कर रही हैं और इंडस्ट्री में वो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, वो तमाम के तमाम ट्रेंड्स भी हेल्प करते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड को डिसाइड करने में। यानी हमने देखना है कि इस इंडस्ट्री में कंपनीज बाकी कंपनीज कैसे चल रही हैं, उनके कौन कौन से डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, तो तमाम के तमाम जो डिसीजंस हैं वो हमारे बोर्ड को भी वो इख्तियारात, वो पावर्स मिलनी चाहिए ताकि वो एक्टिविटी कर सकें। इसे कहते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड। फाइन, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।